In this lecture, we will discuss the other metabolic processes and the uses of energy. प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो अपने जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस डिस्कस किए थे विच वर इंक्लूडेड द फोटो ऑटोट्रॉफी, द फोटो हीटरोट्रॉफी एंड द कीमोटोट्रॉफी. तो फोटो ऑटोट्रॉफी actually is the process of photosynthesis that occur in cyanobacteria, green plants and the algae, while other bacteria are the green and purple bacteria. So green and purple bacteria are also the photosynthetic bacteria, but they are slightly different from the green plant, cyanobacteria and the alga. So the basic difference is for their pigmentation, और उनकी pigments जो हैं वो slightly different है from the other photosynthetic plants or the algae. So the green sulfur bacteria contain the bacterial chlorophyll, and the purple sulfur bacteria contain the bacterial chlorophyll and red and purple carotenoid pigments. So these green and purple sulfur bacteria are also photoautotroph. Photoautotroph means with the stimulus of light by the utilization of pigment chlorophyll and the other carotenoid pigments, they are able to excite an electron, and when the electron is excited, it moves toward the electron transport chain and produces the energy in the form of ATP, and sometimes it returns back, or after the photolysis of water it returns the electron towards the chlorophyll, and resultant process is in continuation. So what is the difference between the photosynthesis of the green and purple sulfur bacteria other than the cyanobacteria, alga and plants? These are the differential factors which are discussed in this lecture. Photosynthesis in green and purple sulfur bacteria, when there is a sulfur intimated in the bacterial type, it means these are the photosynthetic bacteria. If the sulfur is not present, it means these bacteria are not photosynthetic. So they absorb light slightly longer wavelength. It means जो क्लोरोफिल प्लांट्स और एल्गे और साइनोबैक्टीरिया की जो वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब करते हैं उससे कंपैरेटिवली ये लॉन्गर वेवलेंथ होती है, तो इनकी एनर्जी सोर्स जो है वो इतनी जो है वो कंपैरेटिव टू द अदर प्लांट जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है, तो ये लॉन्गर वेवलेंथ की जो है वो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज द they use hydrogen compounds such as hydrogen sulfide rather than water. The chlorophyll pigment in plants, algae and cyanobacteria utilizes the water to break down and utilize the energy after some process. जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल कर रहे हैं. What is the hydrogen sulfide? Is the H2S, and it split it the product in form of elemental sulfur, and sometimes further oxidation resulted the production of sulfuric acid. So the difference here in the photosynthesis of green and purple sulfur bacteria is electron from their pigment reach an energy level high enough to split H2S and to generate an H plus gradient for ATP synthesis. So actually जो आपके green sulfur और green purple sulfur bacteria होते हैं, they have the energy to split only H2S molecule rather than the water molecule, और रिजल्टेंट क्या होता है, हमारे पास एक H plus gradient जनरेट होता है. यही H plus आगे जो है वो डिफरेंट कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स में जाता है और ATP की सिंथेसिस करता है. क्योंकि यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जितने भी आपके ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, दे आर स्ट्रिक्टली एनाएरोब्स, एंड वेयर दे एक्चुअली लाई, ये यूजुअली जो है वो स्टैग्नेंट वाटर में और जो लेक्स वहाँ पे जो है ये मौजूद होते हैं. और यहाँ पे जो है वो सिमिलर प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन बस डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या सल्फर एलिमेंटल सल्फर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही, जो कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के अंदर जो है वो क्रिएट हो रही है या जेनरेट हो रही है. These are the photoheterotrophy. Photoheterotrophy means they utilizes the energy or the stimulus from the light, but they are unable to produce energy. लेकिन कब ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के एबल होते हैं कि ये जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं
जिसमें हमारे पास अल्कोहल, फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और फिर क्या होता है, ये एनर्जी सोर्स जो है वो इन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आती है और फिर वो अपनी जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये जितने भी फोटो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, दे ऑल आर नॉन सल्फर पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया। द मेजर डिफरेंस ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स एंड द हेट्रोट्रॉफ्स फॉर द बैक्टीरिया इज द प्रेजेंस ऑफ और द एब्सेंस ऑफ द सल्फर। अगर सल्फर प्रेजेंट होगी इट मीन्स कि वो फोटोसिंथेटिक हैं, तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे। अगर सल्फर प्रेजेंट नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो हेट्रोट्रॉफ्स हो जाएंगे, बट दे रिमेन फोटो हेट्रोट्रॉफ। लाइट की स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। Third one are the chemoautotrophy or the chemoautotrophs. Chemoautotroph mean they able to produce their energy by their self, but they require some chemical reaction. What kind of chemical reaction happened here is the oxidation. Oxidation of the inorganic substance which produces the energy, and by the energy and the carbon dioxide source as a carbon source, the bacteria synthesize a great variety of substances including carbohydrate, fats and proteins, nucleic acid. So what are the basic utilization of the chemoautotrophs? They actually utilizes the inorganic substances. These inorganic substances may be the nitrogen containing compound or the sulfur containing compound or the iron containing compound or the hydrogen containing compound. So these all utilized by the bacteria, और जिस तरीके से वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज करते चले जाते हैं वैसे ही उनको ग्रुपिंग करती चले जाते हैं बैक्टीरिया की। फॉर एग्जाम्पल, this is the characteristic of chemoautotrophic bacteria. यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ग्रुप एंड द रिप्रेजेंटेटिव जीनस एंड द जेनेरा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्रोडक्ट्स आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है इट मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रही है रिएक्शन के अंदर, तो प्रोडक्ट में आपको जो है वो ऑक्सीजन एड अप मिलेगी। तो हमारे पास है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसमें नाइट्रोबैक्टर्स आ जाते हैं, नाइट्रोसोमोनाज आ जाते हैं, और यहाँ पे HNO2 और NH3 को जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है वो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है, HNO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। साथ साथ जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया जिसके अंदर थायोथ्रिक्स, थायोबैसिलस हैं, और इनका क्या काम है, ये H2S और सल्फर की एनर्जी सोर्स को यूज़ कर रहे हैं और क्या जनरेट कर रहे हैं, वाटर प्लस सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमारे पास आ जाते हैं आयरन बैक्टीरिया, साइड्रोकैप्सा, ये Fe2+ आयन को यूज़ करके जो है उसको फेरिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करें और हाइड्रोक्सिल आयन साथ में प्रोड्यूस करें। इसके साथ साथ हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया जिसमें हमारे पास एल्कलीजिन्स हैं, ये जो हाइड्रोजन गैस को यूटिलाइज कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं इसको टूवर्ड्स वाटर। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया जो है वो जिस रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है उसी तरीके से उसकी जो है वो ग्रुपिंग भी कर दी जाती है, और यही ग्रुपिंग जो है वो आगे उसकी कैटेगराइजेशन में इस्तेमाल होती है। तो एक्चुअली कीमोऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं, आफ्टर द ऑक्सीडेशन दे यूटिलाइजेस सम इनऑर्गेनिक सोर्सेज एंड प्रोड्यूसेस सम प्रोडक्ट्स आफ्टर द ऑक्सीडेशन। और इससे क्या हो रहा है, इससे जो है वो नाइट्रोजन जैसे कि यूटिलाइज हो रही है, ये सिम्बियोटिक सारे फैक्टर्स हैं, और इस तरीके से एक बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो जनरेट हो रही है और बैक्टीरिया अपने लिए भी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। सो नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ एनर्जी। अभी हमने इन प्रीवियस लेक्चर एंड मेटाबॉलिज्म जब से स्टार्ट किया है तो वी कवर्ड all the metabolic pathways and the metabolic processes that produces the energy or the generated energy which utilized by the microorganisms for their different functions। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो processes हैं या कौन कौन से वो functions हैं जो कि एक bacterial cell और microorganism जो है वो perform करता है by utilizing the energy from the previously studied processes and the pathways। So the major uses of this energy is the biosynthesis, the membrane transport, movement and growth, obviously growth is needed because of an additional factor that a bacteria utilize this energy in the bioilluminescence.
which will be discussed laterly. So these are the uses of energy in different processes. वन बाय वन जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे कि what are the biosynthesis, and then how the membrane transport carrier supported the bacteria to move the substance in and out, and movement एक्चुअली जो है वो डिस्कस कर रही है इस पॉइंट को लेके कि बैक्टीरिया खुद फ्लैजिला के थ्रू कैसे मूव करता है. कीमियोस्मोसिस हम प्रीवियसली जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ द फ्लैजिला मूव बाय यूटिलाइजिंग द एटीपी through electron transport chain. So the first one is the biosynthesis. As the name indicated, it is the synthesis of some biological basic compounds such as amino acid, purines, pyrimidines and ribose. These all are derived from the intermediate products of energy yielding catabolic pathways. Actually, these are compounds are generated by the all metabolic pathway of the bacteria, and these are the basic building blocks to make protein and nucleic acid. इसके बगैर जो है वो एक बैक्टीरिया अपनी स्ट्रेंथ नहीं मेंटेन कर पाएगा और उसको ये तमाम चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड. बायोसिंथेसिस में जहाँ पे ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या तमाम ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं, साथ साथ some bacteria are able to synthesize cellulose, for example Acetobacter, along with the synthesis of peptidoglycan, lipopolysaccharide and other polymer associated with cell wall, synthesis of capsule. These all are the examples of the biosynthetic activities. It means a bacteria utilize the byproducts or the different pathways to build up their building blocks, and some these structures have been developed after utilizing the different pathways. So this is a biosynthetic pathways, how metabolic pathway helps to produce these agents. यहाँ पे आप इसकी की देख लीजिए. येलो जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ब्लू जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं, एंड ये पर्पल कलर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है. So essential concept of the metabolism, glucose 6 carbons है, ribose are the 5 carbon. तो easily glucose से 5 carbon जो है वो ribose बन सकते हैं, and then tetrose which are the 4 carbon. यहाँ पे जो है वो serine, ये glycine, cysteine, these all are the sugars, और at the end जो है वो डिफरेंट जो है वो कॉम्पोजिशंस जो है वो या बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते प्यूरीन्स बन रहे हैं. साथ साथ पायरुवेट यहाँ पे कंपाउंड जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, वैलीन, ल्यूसीन, एलेनिन, दीज आल और द बिल्डिंग ब्लॉक्स. इसी तरह ग्लूटामेट जो है वो प्रोलीन, आर्जिनिन, ग्लूटामीन बना रहा है. एस्पार्टेट क्या बना रहा है हमारे पास, लाइसिन, थ्रियोनिन, पायरिमिडीन. तो ये सारे के सारे शुगर से क्या बनना शुरू है हमारे पास, दीज ऑल आर अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड से यहाँ पे हमारे पास ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस बनना शुरू हुए हैं. ये भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं. इसी तरह 7 कार्बन कंपाउंड से जो है बेंजीन रिंग एंड देन टायरोसिन, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफेन बन रहा है. तो इट मीन्स कि डिफरेंट शुगर्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेसिस जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सेल कंपोनेंट्स की और उनकी रीजनरेशन की और प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन की, अपनी एनर्जी की यूटिलाइजेशन की. तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है, इन पूरे बायोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर जो है वो ये पूरा एक बायोसिंथेटिक प्रोसेस है जो कि मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू जो है वो यहाँ तक पहुंचा है. और एट दी एंड हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एक बैक्टीरिया अपनी कंपोजिशन और अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए. फिर यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अदर कंपोनेंट, लिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बन रहे हैं, लिपोप्रोटीन्स. ये इसके थ्रू क्या हो रहा है, पॉलीसेकेराइड जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि कैप्सूल और ये तमाम जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बन रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है बैक्टीरिया में, ये सब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो बन रहे हैं, सिंपलर
आपके कंपोनेंट्स के थ्रू, मीन्स के लिपिड्स जो है वो किस तरह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जो है वो जनरेट कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स से किस तरह प्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन रहे हैं। इसी तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो ग्लूकोज एंड अदर शुगर जो है वो पॉलीसेकेराइड्स बना रहे हैं, और फिर यही पॉलीसेकेराइड जो है ग्लाइकोलिपिड्स कंबाइन हो रहे हैं, मीन्स के ग्लूकोज कहाँ पे लिपिड के साथ कंबाइन हो रहा है, ग्लूकोज कहाँ पे प्रोटीन के साथ कंबाइन हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है वो जब ये पॉलीसेकेराइड कंबाइन हुआ है विद द लिपिड तो इसने क्या फॉर्म किया है, ग्लाइकोलिपिड्स। इसी तरह पॉलीसेकेराइड ने जब जो है प्रोटीन के साथ कंबाइन हुआ है तो उसने फॉर्म किया है ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड जब प्रोटीन के साथ कंबाइन हुआ है तो न्यूक्लियोप्रोटीन बना है। तो प्रीवियस के अंदर क्या था कि हमने ये देखा कि किस तरह ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेसिस क्रिएट हो रहे हैं और वो सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं ये पायरुवेट, ये सब हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है 3 कार्बन है, ग्लूकोज 6 कार्बन है, पायरुवेट 3 कार्बन है, किस तरीके से। फिर इसी तरीके से ये सारे कंबाइन होते होते यहाँ पे 7 कार्बन कंपाउंड्स बन रहा है, तो फिर कैसे चेंजेस आ रही हैं, और एट द एंड हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि ऑल अलोन सिंगल या सिंपलर जो कंपोनेंट है वो किस तरह एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को क्रिएट कर रहा है बाय कंबाइनिंग द 2 सिंपलर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स, आपके पास क्या जनरेट हो रहा है, ग्लाइकोलिपिड्स, फिर पॉलीसेकेराइड विद प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और फिर इसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आपको क्या बना के दे रहा है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो ये तमाम के तमाम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स किस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को बना रहे हैं। नेक्स्ट इज द membrane transport and the movement. Very important how the energy utilized by the bacterial cell to move in molecule in and out, because it is very obvious the bacterial resources are continuously required, और उसको एनर्जी के लिए जो है मुस्तकिल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए जो है कुछ कंपोनेंट्स की मूवमेंट, वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करना है, कुछ एनर्जी रिसोर्स को इन करना है, तो वो किस तरीके से अपना काम परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक्चुअली 3 टाइप्स की होती हैं, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का डिफरेंस जो है वो कहीं पे कैरियर इन्वॉल्व है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। पैसिव डिफ्यूजन जो है वो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है वो कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मूव करा देते हैं मॉलिक्यूल को फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस concentration gradient. Concentration gradient means the difference among the concentration across the membrane, for example inside the membrane and outside the membrane. So what actually present for the membrane transport of the bacteria is there are 2 type of mechanisms which involve. First जो कि यूटिलाइज कर रहे हैं एनर्जी को। यहाँ पे हम वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज द फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम, दैट इज द पीटीएस सिस्टम। अब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मीन्स के अगर कंसंट्रेशन जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक जगह जो है वो कम है और एक जगह ज़्यादा है, तो जहाँ पे कम है वहाँ से मज़ीद मॉलिक्यूल जो है वो जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे मूव कर सकता है। तो ये प्रोसेस जो है वो रिक्वायर करता है कि ये विदाउट एनर्जी जो है वो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन तो बहुत आसान है कि मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा है वो दूसरी तरफ आसानी से मूव कर जाते हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि एनर्जी डिपेंडेंट हमें जो है वो ट्रांसपोर्ट चाहिए। दिस इज द प्रेजेंटेशन of different transport mechanism. This is the passive transport which actually happen from the higher, these are the higher concentration and these are the lower. तो molecule जो है वो easily move कर सकता है। अब passive ये क्या है हमारे पास, passive diffusion है, और इसको हम facilitated diffusion क्यों कह रहे हैं। simple diffusion में क्या हो रहा है, molecules यहाँ पे ज़्यादा है through semi permeable membrane, और क्योंकि ये टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो कंसंट्रेशन का क्योंकि डिफरेंस है तो मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकता है, लेकिन जिसको मेम्ब्रेन अलाउ करे। हर
मॉलिक्यूल जो है वो एंटर नहीं हो सकता। हम ये सेल मेम्ब्रेन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल की मूवमेंट को जो है वो मेम्ब्रेन अलाउ करती है, इसीलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अच्छा, अगर इधर हम डिस्कस करें दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स हायर एट आउटसाइड द मेम्ब्रेन और इनसाइड जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको कहा जाता है पोरेंस। जब हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पोरेंस, डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं। अब एक यहाँ पे क्या है कि ये सिंपली एक तरह की वो डिफ्यूजन है कि जिसमें मॉलिक्यूल को अलाउ कर रहा है पोरेन, उसके लिए चैनल बना रहा है, उसको अलाउ कर रहा है, एक्सेस दे रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि 1 by 1 एंटर होगा, वो फिर अलाउ कर देगा। दोनों जो है वो एक तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे पोरेन जो है वो अलाउ कर रहा है। अब ये उसकी मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी पे भी है और पोरेन की अपनी जो है वो अट्रैक्शन पे है मॉलिक्यूल के साथ कि वो किस तरीके से फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन को। दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑपोजिट टू दिस पैसिव। हाउ? यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी सेल मेम्ब्रेन से बाहर, यहाँ कंसंट्रेशन इन मॉलिक्यूल की ज़्यादा है, इन मॉलिक्यूल की भी ज़्यादा है। और अब ये कम है और इन्हीं को मूव करना है। अगर आप ये देखें तो मूवमेंट जो है वो किसकी जा रही है, ये जो आपके पास ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको मूव कराना है। ये तो ज़्यादा है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहे। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करेगी, एटीपी एनर्जी सिस्टम जो है वो आएगा और वो उस पोरेन को जो है वो चैनल को स्पेस देगा, जिस स्पेस की वजह से ये वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंटर होते चले जाएंगे और ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, डिफरेंस सब जाने का मकसद क्या था कि एनर्जी की सोर्स रिक्वायर है टू ओपन दिस चैनल टू मूव these molecules against the concentration gradient. This is also an illustration of these three process. हमने वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा पढ़ा था फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम, पीटीएस सिस्टम, जिसको ग्रुप ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ग्रुप ट्रांसलोकेशन अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉल्यूट अटैच हो रहा है कैरियर के साथ, कैरियर इसको इनसाइड मूव कर रहा है, फिर इसी तरह ही प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन कैरियर की अवेलेबिलिटी, मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी, ये सारा डिपेंडेंट सिस्टम है। इट मीन्स के एक वक्त में एक ही मॉलिक्यूल को ये मूव करा सकता है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, इजीली कैरियर जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन इजीली मूव करा देता है जब एटीपी प्रेजेंट होता है। अब ग्रुप ट्रांसलोकेशन क्या है, अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन देखें तो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक पीईपी मौजूद है। ये पीईपी एक्चुअली क्या है, फॉस्फो इनोल पायरुवेट, और यहाँ पे परमिएज एंजाइम है जिसका ये काम होता है कि मॉलिक्यूल को जब एक दफ़ा इनसाइड कर देता है तो उसको केमिकली मॉडिफाई कर देता है। अब जब केमिकली मॉडिफाई करता है तो एक ग्रेडियंट, अब यही मॉलिक्यूल इनसाइड गए हैं, यही मॉलिक्यूल, बट स्ट्रक्चरली मॉडिफाई हो गए, केमिकली इनको मॉडिफाई कर दिया है। अभी जब केमिकली मॉडिफाई हो गए तो ये वापस यहाँ है, इनकी कंसंट्रेशन हायर, ये वापस डिफ्यूज नहीं होंगे। उससे क्या होगा कि हमें, ये अगर शुगर मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, तो शुगर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो कंटिन्यूसली इन एंड आउट करते रहते हैं, तो ये ट्रांसलोकेशन क्या करेगी, ये मॉडिफाई कर देगी उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और इनसाइड द साइटोप्लाज्म ये अपनी एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज कर लेगा बैक्टीरिया इस ग्लूकोज के थ्रू, और ये बाहर जाने नहीं पाएगा। तो उसको हम कहते हैं ग्रुप ट्रांसलोकेशन। और इससे क्या होता है, एक ग्रेडियंट नजर आ रहा है हमें, ग्रेडियंट इसलिए क्योंकि ये जो ये वाले मॉलिक्यूल है ये अंदर नहीं है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इट मींस ग्रेडियंट तो है लेकिन एक्चुअली ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसने इसी मॉलिक्यूल को सिंपली मॉडिफाई कर दिया, और रिजल्टेंट क्या होगा कि एनर्जी जो है वो मुस्तकिल वो अपनी यूटिलाइज करता रहेगा बाय यूजिंग दीज मॉलिक्यूल विच एक्चुअली आर केमिकली मॉडिफाइड ओनली। बाकी स्ट्रक्चरली वो सेम है, उनका फंक्शन सेम है, सिर्फ उनको केमिकली थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जिसकी वजह से वो वापस डिफ्यूज
नहीं हो सकेंगे, तो एक ग्रुप ट्रांसलोकेशन जो है वो एक एडेड एनर्जी, लेकिन ये सारा जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट सिस्टम है क्योंकि इसके अंदर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज द बायोइल्यूमिनेसेंस। Actually, some bacteria are able to emit light as a byproduct. और ये होता कब है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म जब हो जाता है तो उसके बाद जो है वो एमिशन ऑफ लाइट जो है वो उससे क्या होता है कि हमें एक लाइटिंग का इफेक्ट जो है वो नजर आता है। ऐसे बैक्टीरिया इज एबल टू emit light। ये प्रोसेस होता क्यों है? The process occurs by the enzyme luciferase along with the components of the electron transport system. Electron transport system यहाँ पे भी involve है और enzyme कौन सा यहाँ पे involve है? That is the luciferase. The enzyme catalyzes a complex reaction in which molecular oxygen is used to oxidize a long chain aldehyde और ketone to carboxylic acid. यहाँ पे क्या हो रहा है कि enzyme catalysis है जिसमें complex reaction हो रहा है and molecular oxygen जो है वो oxidize हो रही है, oxidize कर रही है किसको? एल्डिहाइड को और कीटोन्स को टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी टाइम पे जब लूसिफरेज ये सारे काम कर रहा होता है, FMNH2 इज ए फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये किस फॉर्म के अंदर मौजूद है? ये एक्चुअली दो तरह से एग्जिस्ट करता है, या तो एक्साइटेड स्टेट में होता है और एक अनएक्साइटेड स्टेट में। ये इसकी क्या है? ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज हुआ टू एन एक्साइटेड FMN कैरियर मॉलिक्यूल ड्राइव फ्रॉम राइबोफ्लेविन। एक्चुअली ये हमारे पास FMNH2 जो है ये जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है और जब एक्साइटेशन के बाद यानी पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस करता हुआ आता है तो उसके बाद ये अनएक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। अब जब ये अनएक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो एज ए रिजल्ट ये लाइट को एमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ये अनएक्साइटेड स्टेट है इसकी और इसमें से ये ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जब FMN वापस रिटर्न होगा टू द अनएक्साइटेड स्टेट तो रिजल्टेंट क्या होगा? हमारे पास लाइट एमिट होगी और कोई ATP जनरेट नहीं होगा क्योंकि लाइट एमिट कर दी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज कर दी है, तो अब कोई ATP जनरेट नहीं होगा और इस तरीके से आपको बैक्टीरियल ग्रोथ नजर आएगी। तो दिस इज ऑल द मेटाबॉलिज्म एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। If you have any question, any query, you can ask in the comment section. So I will be able to discuss you after your questions. Thank you so much.